हमें, नैसर्गिक है. ओके, दैट इज द नेचुरल. तो हमें नेचर में जो कुछ हमसे हमारे इंडिया में है, वहां की साइट्स हमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिनी जाती है, हमें सिर्फ उनका ही नाम लिखना है. सो वी कैन ऐड हियर ग्रेट हिमालय रेंजेस. वी कैन ऐड विच आर इन वी कैन से हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं, ग्रेटर हिमालय रेंजेस. आफ्टर दैट इन महाराष्ट्र वी कैन ऐड वेस्टर्न घाट्स, और वी कैन ऐड the Khas Plateau, which is in Satara district. Okay. After that, we can add Valley of Flowers, which is also in Himachal Pradesh. Okay. And last one is Sundarban Forest, which is in Kerala. Okay. So we can write any four options here. Okay. So in the answer, I have written Great Himalaya Ranges. After that, Western Ghats, Valley of Flowers, Sundarban, and one more is there. You can write it also the Khas Plateau in Satara, or we can write the Khas Plateau. Okay, these are the four World Heritage Sites in India. Now see, in the second question, we have to fulfill with the types of encyclopedia. Okay, we have to write about types of any four encyclopedia. Encyclopedia in which the knowledge of whole world is there. That is the encyclopedia. Now, which type? There are four types of encyclopedia. That is dictionaries. After that, Vishwakosh. After that, encyclopedic literature. And next one is indexes. So all these are the four types of encyclopedia. Now see children, the third one, again a web map is there, web is there. Now in this map we have to write about the any four adventurous sports or games. Now see in the first page we have got some examples like water polo, skating, both are the adventurous sports. Okay. After that we can write skiing is there, gliding is there, rock climbing is there, and ice skating is there. I have written these four. You can write any one of them, and you can add here um, skating. Skating is there. You can write skating also. Okay, skating is there. That skiing is there, gliding is there, rock climbing is there. Okay, all these are the four adventurous games. Now, in this way, if you attain any two within from this given question, you can achieve 4 marks. Okay. Now come with the question number 2's B part. Okay. Web charts are the A part, and now with the B part. In the B part, we have to write short notes. And the question is write short notes on any two. Now again, there are three options in front of us and we have to complete any two, which scores individually 2 marks. It means it score 4 marks. Getting it? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा और आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि हम स्कोर करेंगे 4 मार्क्स. एंड आपको आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे हैं, उसमें से किसी 2 को आपको करने हैं. ओके. नाउ द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज we have to write about Indian feminist historiography. Now, Indian feminist historiography का मतलब है कि वो historiography जो इंडिया में फेमिनाइन मतलब लेडीज ने लिखी. ओके, लेडीज के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा लिखी गई historiography. That is the Indian feminist historiography. Now, in answer we can write Tarabai Shinde, Pandita Ramabai, and Dr. Rukmabai were feminist historians before independence. Independence के पहले ये तीनों हमारी feminist historians थी इंडिया में. They wrote about employment of women. They write to political equality, treatment meted out to women at their workplace, and gender discrimination. Now see, all these about feminine historiography because they have wrote about that time, about that era.
जिस टाइम में ये लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तब जो फीमेल थी उसका क्या वैल्यू था, उसका क्या स्टेज था उसमें, तो उसके उनके लिए उन्होंने लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन दैट राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिक्स में हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने लिखा ट्रीटमेंट मैंडेट आउट टू वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। जब कोई लेडीज किसी काम पे जाती है बाहर, तो वहां पे उसका कैसा प्लेस होना चाहिए। मतलब पहले ऐसे हुआ करता था कि जितना वेजेस मेल को मिल रहा है उतना फीमेल को नहीं मिलता था, तो इसके खिलाफ में भी उन्होंने लिखा। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा मेल और फीमेल को लेके मतभेद रहता था, उसके बारे में भी ये फेमिनिस्ट ने लिखा है। आफ्टर थर्ड, अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द, सॉरी, यस, a lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women can on problems like social class, caste, etc. In the past post-independence era, Dr. Sharmila Rege included her essays on autobiographies of Dalit women in her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies. Okay, now see, this lady, Dr. Sharmila Rege, had written about the autobiographies of Dalit women. Dalit means those people who are only attached with to clean the toilets and latrines. That are the Dalits. Okay, दलित उनको उस समय ऐसी क्लास जो था, हमारा जो सोसाइटी थी, ये क्लासेस में डिफरेंशिएट थी। तब ये जो दलित थे और वहाँ की जो औरतें थी, मेनली फीमेल जो थी, उनके साथ में बहुत ही ज्यादा शोषण हुआ करता था। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, okay, regarding Dalit women's testimony. Okay, after that, Meera Kasbe's book, that is the Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social Histories, after that containing essays on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. तो इनके बारे में एसेज लिखे गए, ठीक है, इनके बारे में स्टोरीज लिखी गई, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उनको उनके बारे में पता चले। स्पेशली बिलोंग्स टू द फीमेल्स को पता चले, इसलिए इस टाइप की हिस्टोग्राफी जो है वो इंडियन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में लिखी गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी बुक्स में कई बार किसी स्पोर्ट्स वुमेन को लेके लिखा जाता है, ठीक है ना, स्टोरीज लिखी जाती हैं या फिर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, लेसन्स लिखे जाते हैं टू एनहांस द स्टेज ऑफ वुमेन। किसी भी वुमेन का स्टेज एनहांस करने के लिए, पूरी सोसाइटी को में जो वुमेन है उनको एनहांस करने के लिए इस टाइप के जो लिटरेचर में है ऐड किए जाते हैं। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द नीड ऑफ मास मीडिया। नाउ एज वी नो, मीडिया मीडिया का मतलब ही है जिसमें हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, दैट इज द मीडिया। एंड मास मीडिया मीन्स द ह्यूज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द मास मीडिया, की एक ही टाइम में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज द मास मीडिया। मीन्स मास मीन्स द ह्यूज, ओके, ह्यूज ट्रांजिशन ऑफ information, that is the mass media. Now we have to write about the need of mass media, कि आज के एरिया में हमें क्यों मास मीडिया की जरूरत है। Now see how we will write the answer. There is need of mass media due to the following reasons. Now reasons are in front of us, that it facilitates free flow of information to all strata of society. All strata means all classes, जहाँ पे भी है वहां तक सोसाइटी में हमारे जितने भी अ, आप बोल सकते हैं कि कास्ट है, रिलीजन है, या फिर हमारी जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सोसाइटी बनी हुई है, या फिर सोसाइटी का हर भाग, वहां तक मास मीडिया पहुंच सकता है। ओके, पीपल आर एबल टू वॉच एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपेंड। ओके, ये भी बात सही है कि मास मीडिया से, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन है, ठीक है, हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन है, तो हम रियलिटी डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे हम लाइव शोज देखते हैं, हम लाइव न्यूज देखते हैं,
ठीक है, उसके अंदर वो सारा दिखाया जाता है और हम देख सकते हैं वो इवेंट जो सचमुच वहाँ पे हुआ और सेम टू सेम हमारी आँखों के सामने हम उसको देख सकते हैं। नाउ after that, mass media is a means of entertainment. It also provides information required for educational and professional development. Television enables a wider reach of these programs. Mass media is very important as it plays an important role to strengthen democracy. हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मास मीडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें क्या अच्छा सोचना चाहिए, हमारे सामने क्या हो रहा है, हम किसको अच्छा समझते हैं लेकिन वो नहीं है और किसको नहीं समझते वो है। ये सब हमारी आँखों के सामने लाने का काम मास मीडिया करता है और जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और भी मजबूत होती है और भी स्ट्रेंथन होती है. So these are the different 4 points in front of us in which we can write in need of mass media. Okay, the next question is toys and festivals. Now we have to write about toys and festivals. Now as we know that in every festival toys are there. बिना टॉय के कोई फेस्टिवल होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, in some days we know that Makar Sankranti is there. Now in these days we can see kites in the shops. Again toy is there. हर फेस्टिवल हमारा जो है वो टॉय से जुड़ा हुआ है. So that's why we have to write about toys and festivals in this. So how we can present this answer? Now toys and festivals are interrelated since ancient times. Toys are used for decoration in different cultures and regions during festivals. In some cultures, toys are distributed as gifts. Santa Claus gives children toys during Christmas. Now, 25 दिसंबर को आपने देखा होगा कि जो सांता क्लॉज बनता है वो सबके लिए चॉकलेट्स टॉयज लेके आते हैं. तो दिस इज फेस्टिवल. फेस्टिवल इट इज रिलेटेड टू टॉयज. ओके. During Diwali festival, model forts are made displaying images of Chhatrapati Shivaji Maharaj, his soldiers and animals which are toys. During fairs and festivals in village, shops are open selling toys. Clay images of snakes and bullock carts are sold during festivals like Bail Poda and Nag Panchami. So children enjoy playing with these clay toys. ओके. ये जो मिट्टी से बने हुए टॉयज होते हैं इनसे बच्चे बहुत खेलते हैं और अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के टॉयज आ गए हैं जो कि हमें फेस्टिवल्स में मतलब मेलों में भी देखने को मिलते हैं. आप कहीं पे भी मेले में जाइए आपको बलून्स दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बलून्स दिखेंगे. उसके बाद में टॉयज होते हैं, एयर टॉयज होते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे. बहुत सारे प्रकार के जो भी टॉयज हैं आपको फेस्टिवल्स में देखने को मिलेंगे. इट इज directly related to the festivals and the toys. Okay, so you can write this answer. Now see students, we have to write only 2 answers, so any 2 questions will give you 4 marks. So you have to attend any 2 questions from these 3. Okay. Now next one is the third question. Now the third question start with explain the following statements with reason. Okay, you have to write any 2. So in front of us there are 4 questions and we have to attend only 2 questions which carries 4 marks. It means each question carry only 2 marks. And what we have to do, explain the following statements with reason. We have to give the reason for these questions. Okay. Now the first question is Michael Ford called his method the archaeology of knowledge. Now we have to explain this statement with reason. Now, what is the reason? That according to Michael Ford, the prevailing method of arranging historical events in a chronological order was not right. He threw light on the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain various transitions in the past. Foucault gave more importance for explaining the
transitions in history. Hence, this method is called the archaeology of knowledge. Now see, these are the all these are the thinkers or historians. So every historian has a specific thinking, a specific knowledge about the history. तो history को पढ़ने का और देखने का हर एक का तरीका अलग है, जो हमने पढ़ा हिस्टोग्राफी में। तो यहाँ पे माइकल फोर्ड है, वो इस बात से मानते नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, जो कि बोला गया था एक हिस्टोग्राफी की history is a chronological sequence, but he not agreed with it. Okay, उनका क्या बोलना है, it is related to the historical truth but attempt the explain various transition in the past में जो भी transition हुए हैं इससे वो related है। ओके, सो इसलिए माइकल फोर्ड जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंस के दिया फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो बदलाव हुए, जो ट्रांजिशंस हुए, उनको इसलिए ज्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है। सो उसके मेथड को उन्होंने द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, जो ज्ञान के बारे में बताता है, ज्ञान कैसे बदला उनके बारे में बताता है, वही उनके मेथड का नाम है। ओके, this is the first answer. Now the second question is, Bakhar is an important type of historical document. Now Bakhar. Now as we know, Bakhar is an important type of historical document क्योंकि उसके अंदर सारे battles के बारे में लिखा जाता था। ओके, जितने भी युद्ध हुए सब उसके अंदर लिखे जाते थे, योद्धाओं के बारे में लिखा जाता था, इसलिए बकर इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। So, Bakhar are important source of history like coins, inscriptions, texts, copper plates, and travelers. Bakhar contains eulogies of the heroes, historic events, stories of lives of great men, and description of battles. It portrays a picture of relevant society, religious, and economic life also. Bakhars are of various types which contain biographies, thinking dynastic histories, description of events, sects, autobiographies, mythologies, administration of kings, etc. So these descriptions are helpful for writing historiography. So in this way we can say that Bakar carries all the things of the past event or about the the kings or about the battles or what happened in the historical events. Okay, everything is written in the Bakar. That's why it is an important type of historical document. Now the third question is, it is essential to study the history of technology. Now it's very important that we should know the history of technology. So how we will write the answer? It is essential to study the history of technology. The answer is, man acquired different skills at various stages in his evaluation process. Now see, as we know that man started his evaluation with some experiments. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही आदमी जो है, मानव जो है वो आगे बढ़ता गया। जैसे he first he know about the fire, he know about the wheel, he know about agriculture। ठीक है, उसने अलग अलग चीजें अपने आप ही सीखी। ठीक है, फायर, आग कैसे जलती है, खेती कैसे की जाती है, ठीक है, पहिया कैसे बनता है, फिर कौन सा एफिशिएंट होगा, पत्थर का पहिया अच्छा होगा कि लकड़ी का होगा, ये सब चीजें, फिर गोल अच्छा होगा कि चौकोर अच्छा होगा, ये सारी चीजें उसने अपने आप ही स्टडी की। और आप देख सकते हैं कि ये स्टडी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी जो टेक्नोलॉजी पहले थी, अब हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इसको हम टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे कि जो चौकोर पहिया था उसको गोल कर दिया, जो व्हील स्क्वायर था उसको हमने राउंड कर दिया, तो ये हमारे जो स्पीड है उसने उसको पकड़ लिया, इसलिए वो टेक्नोलॉजी ही हुई। गेटिंग इट, हमने उसके अंदर किया। सो फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल्स टू डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, he learned many skills and entered in the age of science. Yes, it's very correct.
ये सारी चीजें मानव ने अपने आप ही सीखी। ओके, ह्यूमन बीइंग ने अपने आप ही सीखी कि किस तरह से पहले वो एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर काम करने के लिए वो पत्थरों के औजार का यूज किया करता था, बोन्स के इक्विपमेंट्स बना के यूज करता था। लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया, उसने आयरन की चीजें, लोहे की चीजों का यूज किया। गेटिंग इट? जो हल है वो जोता जाने लगा, और अभी टेक्नोलॉजी आई कि वो ट्रैक्टर से खेत जोतता है। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए। सो डायरेक्टली ट्रैक्टर तो आया नहीं, तो ट्रैक्टर से पहले हल कैसे आया, हल से पहले लकड़ी का हल कैसे आया, ये सब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ थर्ड वन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, architecture, engineering, etc. underwent several changes. Production increased manifold because of technology. Hence, it is necessary to know the history of technology in order to understand the development in mechanization and mutual dependence between science and technology. So it's very important to know about our history of technology. ये हमें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आज हम जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे डायरेक्टली हमारे पास में नहीं आई, वो एक स्टेज क्रॉस करते हुए आज हमारे पास में इतनी एडवांस में आई है। Getting it? That is the technology. So we should know, or it is essential to study the history of technology. So students, in this way you can write the answer. Okay. The next question is, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. Okay, it's very well said that the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. कि जो लोग बाहर चले गए थे, परदेश में चले गए थे, अब वो लोग वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो we have to put the reason. What is the reason? The first point is, it has become easier to travel because to easy availability of number of options like railway, marine and air services. Marine transport had linked to coastal regions. Aviation has brought the entire world closer. The economic liberation policy of Indian government has made the travel more easy. Now people travel for studies, relaxation, sightseeing, and professional assessment, meeting, etc. Also were shooting films. Therefore, has been considerable increase in the number of people traveling back and forth from India. तो इन सारी चीजों के लिए जो है हम लोग अब इसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, there are 4 questions and you have to attend any 2. If you attended any 2 questions, then you will score 4 marks. Each question scores 2 marks. And if you attended any 2 questions from this part, for these 4 questions, then you can score for 4 marks. Okay. Now next question. Now this is a paragraph. Now read the following extract and answer the following question. Now one extract is there, that is about the Bhilar village. Now, Bhilar village is a village near Mahabaleshwar which boasts of natural beauty and sweetness of strawberry. It is also known as the village of books. Every household in this village maintains a library of its own for the tourist to enjoy. Maharashtra state government has implemented this scheme with a view of illustrate the reading culture movement for the reader tourist to enjoy the beauty of Marathi literature, enriched by the work of old and new authors and saints. It includes various types of texts like biographies, autobiographies, fictions, poetry, literature by women, literature on sports, literature for kids, etc. Now this is the an extract. Okay, this is a part of a book, that is the extract. Now we have to answer the question. Now the first question is,
What type of books are kept in Billa? Okay, the question is what type of books are kept in Billa village? As we know that it is famous for the village of books. It is known as this Bilar village is known as village of books, and so there are different types of books are there. So in Bilar we find books of old and new authors, ranging from biographies, autobiographies, fiction, poetry by women, on sports and literature for kids. Now these type of books are kept in Bhilar. Okay. Next one. Next question is why is Bhilar village known as village of books? Because question is very easy. Because answer in front of us that why it is known as village of books, because each and every house maintains a library and which is for the tourist. Okay, now how will we present the answer that each household in this village maintains like a library its own. Tourists enjoy reading this book. Maharashtra government has kept these books in every household so that it became easy for the tourists to take and read. So it is done with a view of accelerate the reading culture movement to enjoy Marathi literature. ओके, बहुत इजी है कि ये जो भिलर विलेज है इसके हर एक घर में एक लाइब्रेरी है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हर एक घर के अंदर ये क्यों, क्योंकि हर एक जो टूरिस्ट आएगा उनके घर से जो बुक्स लेगा उससे उसका लिटरेचर का जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। ठीक है, स्पेशली अबाउट द मराठी लिटरेचर। मराठी लिटरेचर में उनका एनहांस होगा, उनको हमारे महाराष्ट्र के बारे में पता चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी ये उनको एथराइज किया है कि टूरिस्ट के लिए ये आप रख सकते हो। ठीक है, hence the village is known as the village of books. Now the third question, which is a map, web map. Now we have to write the speciality of Bhilar village. Okay, what is the speciality of this village? That this place is full of natural beauty. Okay, after that production of strawberry on a large scale. We can add this village is known as books of village. Okay, village of books. And the fourth one we can add that each and every house is like a library. Now these four options we can add in this map. Getting it? Now students, the first question carries 1 mark, the second one question also carries 1 mark, and this map carries 2 marks. Now in this way you can score 4 marks. Getting it? Now with the fifth question, answer the following question in detail. Any two. Now you have to answer any two questions. There are 4 questions in front of us, but we have to answer any two questions and each question carry 3 marks. Getting it? Now, the first question, what is the contribution of Swatantra Veer Savarkar to nationalist historiography? Okay, now we have to write about the contribution of uh, Swatantra Veer Savarkar. Okay, now the answer is the nationalist historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British. This in this aspect, the book The Indian War of Independence 1987 written by Vinayak Damodar Savarkar is a great importance. Now, this is the contribution of Swatantra Veer Savarkar. That is, he wrote the book The Indian War of Independence 1987. This is the great contribution of Swatantra Veer Savarkar. Okay. The next question is, what are the benefits of preservation of natural and cultural heritage project?
Now we have to write about the benefits of preservation of natural and cultural heritage project. Means natural means जो नेचर में है और कल्चर जो हमारी कल्चर को शो करता है. तो how we will preserve this cultural or natural heritage project? Now, as a source of identity, heritage is a valuable factor of empowering local community and enable vulnerable groups to participate fully in social and cultural life. It can also provide time-tested solutions for conflict preventing and reconciliation. Cultural heritage is central to protecting our sense of who we are. It gives us an inseparable connections to the past, to certain social values, beliefs, customs, and traditions that allows us to identify ourselves with others and deepen our sense of unity, belonging, and national pride. Now see how we will conserve or preserve the natural and cultural heritage projects. हम किस तरह से कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज प्रोजेक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो इस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है ये हमें अपने आप को जोड़ के रखता है. हमें वो जोड़ के रखता है अपने कल्चर से, वो जोड़ के रखता है हमारे नेचर से. ओके, इट जॉइंट अस डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर पास्ट. हमारे पास्ट में जो कुछ है हमें उससे कनेक्ट करके रखता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. गेटिंग इट? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हाउ what are the benefits of preservation of natural and cultural heritage projects. Okay, next question, explain the professional fields associated with tourism. Okay, अब हमें लिखना है explain the professional fields associated with tourism. कौन कौन से प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जो टूरिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं. सो वी हैव टू राइट अबाउट इट. नाउ द आंसर इज hotels, lodges, and boarding services are directly connected to the tourism. Shop selling food items, catering services, etc. Handicraft and cottage industries, and shop selling manufactured products. So see students, all these are the, what I am reading here, all these are the professional fields. जितने भी fields हैं ये professional ही हैं. For example, hotels, होटल का प्रोफेशन होता है. लॉजिंग, बोर्डिंग सर्विसेज, ऑल आर प्रोफेशनल. आफ्टर दैट सेलिंग फूड आइटम्स, केटरिंग सर्विसेज, ऑल दीज आर आल्सो प्रोफेशनल फील्ड्स. आफ्टर दैट हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग जो होते हैं वो. शॉप सेलिंग, ये सारी जो है जो हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं या फिर कॉटेज इंडस्ट्री से जैसे जूट के बनी बैग्स होती हैं या फिर बाम्बू से बने खिलौने होते हैं, डेकोरेटिव चीजें होती हैं. तो ऑल दीज आर द रिलेटेड टू प्रोफेशनल फील्ड्स. Now industries affiliated to hotel industries like dairy industries, agro industries, which supplies vegetables, fruits, fish and meat to these hotels. अब hotels बड़ी बड़ी टूरिस्ट प्लेस पे जो hotels होती है उसके अंदर जो खाना आता है वो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ये भी एक प्रोफेशनल फील्ड ही हुआ. ठीक है ना. जैसे कोई होटल है तो उस होटल में अगर चाय बनती है तो चाय के लिए दूध जो सप्लाई करता है वो भी उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है. जो आदमी वहां पे चाय पत्ती या फिर चीनी ये प्रोवाइड करता है वो भी उसके साथ में कनेक्टेड है. इसका मतलब है हर एक प्रोफेशनल फील्ड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टूरिज्म से. ओके, आफ्टर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय टूरिस्ट सच एज बस, ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी. ऑल दीज आर द प्रोफेशनल फील्ड्स. चाहे वो बसेस हो, चाहे वो टैक्सीज हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, ये सारी चीजें प्रोफेशनल ही हैं. ठीक है. अगर हमें टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट हम लोग जा रहे हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम इसमें से किसी भी एक चीज का यूज करते हैं. गेटिंग इट? तो in short we can say it is directly connected to tourism. Travel agents, photographers, guides, etc.
or other such professions are related to tourism. गेटिंग इट? ये भी एक पार्ट है टूरिज्म का. ओके, कैन समवन टेल मी अबाउट द अदर वेज or other profession which is directly associated with tourism? Is any student will tell me? Okay, it's okay now. The next question is, why is library management important? Okay, library management क्यों जरूरी है? Now the answer is, library is not just about a collection of books, but managing is an equal important. Now, readers can easily get the books they want if the library is properly organized. The location of books should be easily traced. It saves the time and efforts of readers as well as the librarian. Preservation and conservation of books is done efficiently with proper management. It prolongs life of books and cause less damage. Now see, लाइब्रेरीज में आप अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्कूल की लाइब्रेरी भी होती है तो उसमें अलग अलग सेक्शंस किए जाते हैं. देयर आर डिफरेंट सेक्शंस एज पर द सब्जेक्ट्स. इंग्लिश का अलग है, यू कैन सी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस. All the sections are different and it makes easy to us to get the book. अगर हमें हिंदी की बुक चाहिए तो हम हिंदी के सेक्शन से निकालेंगे. If we want science book, we will get it from science section. Getting it? So this is the management of library. लाइब्रेरी का एक मैनेजमेंट है जिससे कि लाइब्रेरियन है और जो पढ़ने वाला है, ठीक है, उन दोनों के लिए ये चीज इजी हो जाती है कि जिसको आप मैथ्स की बुक चाहिए तो वो मैथ्स सेक्शन से ही निकालेगा, वो साइंस सेक्शन में देखने के लिए नहीं जाएगा. सो इट सेव दिस टाइम ऑल्सो. नाउ इफ द लाइब्रेरियन इज वेल acquainted, he or she will have good collections that will make available good quality books to readers. Instead of collecting books on one subject, there should be variety in the collection so as to cater to choices the different readers. Okay, इससे अगर लाइब्रेरी है तो उसके अंदर अगर अलग अलग फील्ड्स की अगर हम लोग बुक रखेंगे, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स की, तो इससे क्या होता है कि रीडर बहुत ज्यादा हमारे पास में आते हैं कि हर एक रीडर की चॉइस अलग है. तो एज पर हिज चॉइस और हर चॉइस दे विल रीड द और गेट द बुक. ठीक है, जिसको जिस टाइप का बुक चाहिए वो उस टाइप का रखेगा. इसलिए अगर लाइब्रेरियन अच्छा होगा तो उसके पास में कलेक्शंस भी अच्छे ही होंगे. अगर लाइब्रेरियन सिर्फ लिमिटेड रखेगा तो उसके पास में लोग भी लिमिटेड ही आएंगे. गेटिंग इट? Facilities like proper catalogs, indexes, computerized system, and modern facilities are provided by effective management of library. A library will become a hub of activities rather than stand in isolation. तो अगर कलेक्शन अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छी है, तो वो जो प्लेस है लाइब्रेरी की वो एक बहुत अच्छी प्लेस बन जाती है. और अगर वहाँ पे कलेक्शन अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं अच्छा होगा, तो वो हमेशा अकेले ही वीरान सी पड़ी रहती है. वहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी में आता नहीं है बुक्स या फिर और कुछ पढ़ने के लिए, बिकॉज द कलेक्शन वॉज वेरी लेस. अगर कलेक्शन बहुत ही कम होगा तो वहाँ पे रीडर जो है वो भी कम आएंगे. लेकिन कलेक्शन अगर ज्यादा होगा, अलग अलग फील्ड्स का होगा, तो अपने आप ही वहां पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं पढ़ने को. तो इन दिस वे वी कैन प्रेजेंट these four questions. Now see students, there are five questions. In this fifth question there are four questions are there. Now you have to write any two and each question carries 3 marks. Getting it? So each question carries 3 marks, so you have to write any two of them. It means you will score the 6 marks. Getting it? Now with the sixth question in which the political science starts. With the sixth question, we will study about the political science.
Now, in the sixth question, the question is choose the correct option from the given options and complete the statement. Now, what we have to do? We have to again, like history, we have to choose any one option, correct option, and we have to rewrite the sentence. Okay. Now, the question is the 73rd and 74th amendment is important step towards the direction of. Now, as we know, 73rd and 74th amendment in our constitution, it इंटीग्रेट आवर नेशन, हमारे नेशन को इकट्ठा किया। वहां पे उन्होंने सारे जो वी कैन से राइट्स हैं वो सबको दिए गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ, राइट टू वोट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। So the correct answer is democratic decentralization. Okay. Now the 73rd and 74th amendment is important step towards the direction of democratic decentralization. मतलब डेमोक्रेसी जो है सबको एक साथ है और उसके जो राइट्स हैं वो सबके लिए एक साथ ही बने हैं। इसके लिए ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज in the political process, increasing participation of dash is a critical problem in the democratic system. That is the participation of whom? Women, people, youth or criminals. As we know, in the political process, increasing participation of women बोलेंगे तो ये कोई criminal problem नहीं है, critical problem नहीं है. people में सब आते हैं, women भी आएगा, men भी आएगा, तो this is not the correct one. youth आएगा तो ये critical problem नहीं है, it's a good thing. So that's not the correct answer. The criminal is a critical problem in the democratic system. तो अगर क्रिमिनल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आ गए तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, now state the following statements are true or false, give reason for your answer, and this question carries 4 marks and you have to attain any 2 of them. There are 3 questions and you have to attain any 2. Okay, now the first one is Indian democracy is considered the largest democracy in the world. Okay, now this statement is a true statement that our Indian democracy is the largest democracy in the world. पूरे वर्ल्ड में हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इट्स ट्रू। नाउ वी हैव टू प्रेजेंट रीजंस हियर। नाउ रीजन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट suffrage by giving the right to vote equality to both men and women above the age of 21 years. तो हमारी डेमोक्रेसी 21 ईयर्स से बड़े लोगों को, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसको वोट का हक देती है, राइट टू वोट, वोटिंग करने का हक देती है, जिससे कि 21 की एज से ही जो बच्चा है या फिर जो यूथ है वो पॉलिटिक्स को जानना स्टार्ट कर देता है कि क्या पॉलिटिक्स में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ओके, नाउ the voting age was further reduced from 21 to 18. It's very correct. पहले 21 था, अब हो गया 18 years, which gave opportunity to political participation to the young generation in India. As we know कि हमारा जो यूथ का है, it is full of youth. इतना यूथ आपको कहीं किसी भी देश में नहीं दिखेगा जहाँ पे हमारे इंडिया में है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि 18th का होते ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको वोट करने की इजाजत देता है, हमें राइट देता है वोटिंग करने की, जिससे कि हम अपने देश का भला या बुरा जान सकते हैं कि हमें किसको वोट करना चाहिए, किसको यहाँ पे हमें मिनिस्टर बनाना चाहिए, किसको आगे लाना चाहिए एज अ लीडर। तो ये सब सोचने समझने का जो है 18 ईयर्स से ही हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे देश में 18 ईयर्स से जो बड़ा है उसको हमेशा वोट करने का राइट दिया जाता है।
Such provisions have made in India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. हमारे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन हैं उनके कंपेयर में इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इंडिया को सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बोला जाता है. ओके, द नेक्स्ट वन, द इलेक्शन कमीशन lays down the code of conduct during election. Okay, now the election commission who conduct the election process. इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस जो इलेक्शन का प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन चलाती है, तो वो ये कोड जो है वो करती है. नाउ इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू. How we will tell that? To ensure free and fair elections in India, Code of Conduct is one of the measures to control malpractices during election. Code of Conduct explains the rules that are to be followed by government and political parties and voters before election and during election. Okay, even the government cannot violate these rules. जो भी रूल्स बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से के दौरान, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन कमीशन से वो कोई भी तोड़ नहीं सकता. मे बी वो गवर्नमेंट हो, मे बी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मे बी वो वोटर्स हो, कोई भी इन रूल्स को तोड़ नहीं सकता, जिससे कि हमारा जो इलेक्शन है वो हमेशा फेयर एंड फ्री रहे. ठीक है, इसलिए इलेक्शन के समय देखिए आपको एक भी पैसा नहीं भरना पड़ता है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन करने जाते हैं. इवन दो जो लोग हैंडीकैप हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बसेस प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए वैन्स प्रोवाइड की जाती हैं कि वो उस जगह पे आके बूथ में आके अपना जो है वोट करे. So it became very easy for those people also. So in this way, the code of conduct is very important. Now third question is, political parties act as link between government and the people. Now it's very correct because political party का जो भी leader है वो normal people means common people and गवर्नमेंट, इनके बीच में वो एक लिंक का काम करता है, क्योंकि कॉमन पीपल हमेशा अपनी फरियाद लेके गवर्नमेंट के सामने नहीं जा सकता, बिकॉज गवर्नमेंट नॉट ए पर्सन. ओके, गवर्नमेंट कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक ग्रुप है जो हमारे देश को चलाता है. तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो भी क्वेरीज होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम एक लीडर को पसंद करते हैं, और वो जो लीडर है हमारी बात गवर्नमेंट तक आके गवर्नमेंट के लीडर्स तक लेके जाता है. तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और पीपल के बीच में. नाउ इट्स ट्रू, political parties communicate the demands and complaints of people to the government. Government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. तो political parties जो है ये क्या काम करती हैं? जो भी प्रॉब्लम है कॉमन पीपल का वो गवर्नमेंट तक लेके जाने का काम करती है, और उसी के साथ में गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है पीपल को with the policies and programs through the political party. जो भी political party programs बनाती है, schemes बनाती है, तो ये लीडर हम तक उसको पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. Getting it? Now with the eighth question, explain the following concept any three. Now see, in the seventh question you have to do any two questions, so you will score 4 marks. Okay, now you can, there are 3 questions, so you can write any two, one of them. Okay, now with the 8th A portion, explain the following concept any one. Okay, now there are 3 options in front of us, 3 questions in front of us. Now we have to explain any one which carries 2 marks. हमें ये कंसेप्ट करने हैं, 3 कंसेप्ट है हमारे सामने, उसमें से कोई एक कंसेप्ट लिखना है जिस जो स्कोर करता है 2 मार्क्स. ओके, द फर्स्ट कंसेप्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर, RTI, that is right to information, was introduced in 2005.
Citizen empowerment is very essential condition of democracy. It creates an opportunity for the citizens to participate and interact with the government. The increased communication between citizen and government help in strengthening democracy. It helps to build trustful relationship between government and the citizens. Right to information ensures transparency and accountability, which are the hallmarks of governance. Right to information reduce the element of secrecy in the working of government. Now, right to information, ठीक है, इंफॉर्मेशन जानने का हक सबको है। तो ये इससे फायदे क्या होते हैं कि इससे फायदे ये होते हैं कि एक ये अपॉर्चुनिटी देता है सिटीजन को कि वो गवर्नमेंट की कोई भी बात जो है या फिर उसको पसंद है या नापसंद है या फिर और क्या करना चाहिए, वो डायरेक्टली उसके साथ में इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें राइट दिया है, हक दिया है कि हम किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। उसके बाद में फायदा ये भी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीई के एक्ट द्वारा, इस इंफॉर्मेशन के राइट द्वारा हम किसी भी सिटीजन के जानकारी मिल सकती है और जिससे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो सकती है, मजबूत हो सकती है। कि अगर हमें पता चला यहाँ पे गलत काम हो रहा है और हमने वहां पे पूछ लिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको करेक्ट आंसर देना ही होगा। और अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। तो इससे वो हमें पता चलता है। आफ्टर आफ्टर दैट गवर्नमेंट और नॉर्मल सिटीजन के अंदर एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर को मालूम है कि नॉर्मल सिटीजन के पास में ये एक्ट है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको कोई भी जानकारी मिलने का हक है। तो अगर वो पूछ लिया तो उसका आंसर उसे देना ही पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही गलती नहीं करता। गेटिंग इट? और दूसरा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ गवर्नेंस। किसी भी गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी, सब काम में अच्छा होना और एकदम हिसाब से काम करना, ये हर एक गवर्नमेंट का काम होता है। ये उनका एक आइडियल होता है, आइकॉन होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है उसने हमेशा अपना काम साफ सुथरे काम करना चाहिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये गवर्नमेंट को करने पे मजबूर करता है कि कल उठ के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका करेक्ट आंसर उसके पास में होना ही चाहिए। इसलिए ये एक हेल्प करता है गवर्नमेंट को भी अपना काम साफ सुथरा करने में। ओके। और इसी के साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, रिड्यूस करता है, जो कुछ चीजें सीक्रेट रखी जाए या फिर कुछ गलत काम किया जाए तो ऐसा काम करने नहीं देती, क्योंकि नॉर्मल पीपल, नॉर्मल सिटीजन उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी कॉमन पीपल अपना क्वेश्चन अराइज कर सकता है, इसलिए कोई भी गलत काम जो है गवर्नमेंट नहीं करते। गेटिंग इट? So all these are the benefits of right to information or right to information. Okay. After that, regionalism. Okay. Regionalism, the feeling of affinity developed about one's own language and region gradually turn into the identify consequences and it give rise to regionalism. Regionalism, अपने रीजन से प्यार होना। ठीक है, हम जिस रीजन से हैं उसी को सब कुछ करना, उसी के बारे में सोचना, ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। ओके। क्यों? क्योंकि हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं हम उसे उसी को केवल ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। हम अपनी भाषा को, हमारे कस्टम्स को, हमारे रीजन को, इन सब को हम अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हम अगर इस रीजन से हैं तो हमारी आइडेंटिटी ये है। तो इससे क्या होता है कि रीजनलिज्म हो जाता है। फिर पीपल थिंक प्राइमरीली अबाउट द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन। रीजनलिज्म होने के कारण क्या होता है कि हम सिर्फ अपने रीजन के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारा रीजन डेवलप करे। ठीक है, तो हम ये एक रीजनलिज्म, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है, ये इंटरनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है
कि अगर हम रीजनलिज्म में लग गए कि हमें सिर्फ अपने रीजन को डेवलप करना है, तो हम अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम किसी के साथ में कोप अप नहीं कर पाएंगे। Whereas in Mumbai you can see there are different regions are there. बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन कोई किसी को लेके झगड़ा नहीं करता। और कई बार ऐसे हो जाता है कि हम अगर अपने रीजन के लिए ही रहते हैं तो हम सबसे झगड़ा मोल ले लेते हैं। गेटिंग इट? तो रीजनलिज्म हमको क्या बताता है कि हाँ, रीजनलिज्म अगर करेंगे तो हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचते, तो उसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म। Okay, next one is reorganization the constituencies. Now, the total number of member in Lok Sabha in 543. Every member represent one constituency. It means there are 543 constituencies in Lok Sabha. Creating constituencies is the responsibility of delimitation commission of election commission. Delimitation Commission does not fall under the pressure while reconstructing the constituencies. Now, all these are the reorganization of constituencies. अब देखिए, अब reorganization मतलब फिर से organization करना किसका? Constituencies का मतलब है कि जब भी elections होते हैं तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है वो वापस वापस बनाई जाती है, क्योंकि हर एक लोकसभा में एक जो लीडर होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाती हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये फिर से नए सिरे से बनाना पड़ता है, जिसके अंदर कितने ऐड हुए, कितने बाहर गए, ये सारी चीजें उनको रखनी पड़ती हैं। Okay. So next question is do as direct. Again map is there. So we have to complete this diagram or map. Now first one is complete the following concept diagrams. So we have to complete any one. Two. There are two questions. One we have to conduct only one, which carries 2 marks. Okay. Now first one is characteristics of people representative. अगर कोई इलेक्शन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? दैट इट शुड बी एफिशिएंट, he or she will be honest, he or she will be trustworthy, and there will be no criminal background of that representative. उसने एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसने कैपेबल होना चाहिए लीडर बनने के लिए, मतलब उतना वो एजुकेटेड होना चाहिए। गेटिंग इट? एफिशिएंट की जगह पे आप एजुकेटेड भी लिख सकते हो। प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए उसका, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, उस पे लोगों का विश्वास हो, और उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। ओके, दिस वन द फर्स्ट वन। सेकेंड वन है नेशनल पार्टीज इन इंडिया। नेशनल पार्टीज के बारे में आपको लिखना है। दैट इज हम लिख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, एंड बहुजन समाज पार्टी BSP, तृणमूल द्रमुक के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी 4 आपको यहाँ पे नेशनल पार्टीज के नाम लिखने हैं जो कि इंडिया में है। गेटिंग इट? And with the last question, that is the 9th question, answer in brief and you have to attend any one. आपको कोई एक करना है question and which carries 2 marks. ठीक है, there are 2 question in front of us, but we have to conduct only one for 2 marks. Now the first question is, what are the benefits of EVM machine? EVM machine के क्या benefits हैं, हमको वो यहाँ पे लिखने हैं। सो आंसर इज, in the initial elections, ballot boxes were used for the purpose of voting. The use of EVM machines started from decade of 1980s. Voting machines, that is EVM machines, proved to be very effective and advantageous important mode which increased the participation of the voters. The voting machine helped the voter to choose an option of
NOTA, that is not of the above, if he do not want to vote any candidate. देखिए, पहले बैलेट बॉक्स जो हुआ करता था उसके अंदर कागज पे हमको निशान लगा के या फिर करके फिर उस बैलेट बॉक्स में डालना पड़ता था, जिससे कि काउंटिंग में भी गलतियां होती थी। लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं डाल सकता था कि मुझे इसमें से किसी को भी नहीं देना, आपको किसी एक को देना ही पड़ता था। लेकिन ईवीएम मशीन से क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ में लास्ट ऑप्शन एक ऐसा है, नन ऑफ दिस, मतलब मुझे इनमें से एक को भी नहीं देना। तो ये जो प्रोविजन है ये ईवीएम मशीन ने प्रोवाइड करके दी है। इट हेल्प्स द डिसेबल्ड पीपल, दिव्यांग, टू वोट इजीली। केवल आपको बटन प्रेस करना होता है, इसलिए दिव्यांग पर्सन भी रहा तो भी वो बटन प्रेस करके अपना वोट कर सकता है। It has helped in the protection of environment by reducing the cutting of trees. Now we will think about why in EVM machine we are saying that ballot box or sorry, this EVM machines reduces the cutting of trees, because for ballot box paper were used and paper is made of trees. That's why for these purposes so many trees were cut down for the use of papers. That's why. But because of this EVM machine, it also helps to reduce the cutting of trees. Okay, it has made possible to earlier declaration of is election results. ईवीएम मशीन के कारण, क्योंकि डिजिटल है, तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी लग जाता है और उसके अंदर किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इट इज कंप्यूटराइज। वो टोटल लगा देता है कि कौन से आदमी को कितना वोट मिला है। गेटिंग इट? तो इससे तो रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन जल्दी से जल्दी हो जाता है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ईवीएम मशीन। सो स्टूडेंट्स, इफ यू राइट ऑल दीज पॉइंट यू विल स्कोर 2 marks. Okay. For the next question, what are the major characteristics of political parties? Now you have to write about the different measures of or characteristics of political parties. Now there are different characteristics of political party. In first, to achieve power. Now why political parties? Why people join political party? To achieve power. To achieve power through the election is the main objective of political parties. Different political parties compete with each other to get power. तो पॉलिटिकल पार्टी में आने का ही बहुत सारे लोगों का एक ही मंत्र रहता है कि उनको पावर चाहिए। ठीक है, पावर, देश पे राज करने का पावर। ठीक है, दूसरी पार्टीज पे राज करने का पावर। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में लोग क्यों आते हैं? टू अचीव पावर। सेकेंड वन, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। द पॉलिसीज एंड thoughts of the political parties are called ideologies. The parties get support from the society based on their ideologies. This social support is called mass base of political party. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, कोई चाहता है कि देश में गरीबों के लिए काम किया जाए, कोई चाहता है कि केवल देश को टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाए, इसके लिए काम किया जाए। तो इस तरह से कोई चाहता है कि हमारे देश में जो रीजन है उसको लेके जो झगड़े हैं वो नहीं होने चाहिए। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का बोलना ऐसा रहता है कि नहीं, जितने भी देश के SC ST कैंडिडेट्स हैं इनका ही अच्छा होना चाहिए, इनको बहुत सारे प्रोविजंस मिलने चाहिए। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग एजेंडा लेके काम कर रही होती है। गेटिंग इट? तो ये उसके बेसिक आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है। ओके, नाउ पार्टी एजेंडा। On the basis of ideology, political party prepare party agenda. They implement their agenda after they got it. Okay, after that, to establish government. Next point है उनका, to establish government. गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए भी लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी में भाग लेते हैं और देश पे राज करने का कोशिश करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट से जीतेगी वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे जाके अपना गवर्नमेंट बनाती है। आफ्टर दैट,
लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ओके, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक लिंक का काम करती है गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में। सो पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज ए लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिकेट्स द डिमांड्स एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। Government tries to get the support of the people for its politics and programming through political parties. तो गवर्नमेंट जो है ये कॉमन पीपल को सपोर्ट करती है, ठीक है, जिससे कि उसकी प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, हर एक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके थ्रू कॉमन पीपल तक पहुंचाती है। ठीक है, गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं। तो ये जो सारे लीडर्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका एक एजेंडा है जिसको लेके वो बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, और कॉमन पीपल तक ये पार्टीज अपने तरीके से सब लोग कॉमन पीपल तक अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये एक काम है पॉलिटिकल पार्टी का। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स आर देयर, दैट इज टू अचीव पावर, basis of ideology, after that party agenda, to establish government, or link between government and the people. So students, if you write any 3 points from these 5 points, you can get 2 marks. आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इसमें से अगर आप 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं, कोई भी 3 पॉइंट, यू कैन अचीव द 2 marks, because the last question is only for 2 marks, but we have to write it in the brief. ब्रीफ में लिखना है। तो आप अगर कोई 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं, 4 पॉइंट्स भी लिखते हैं, तो यू कैन स्कोर 2 marks. ओके, नाउ इज एनी problem with this analysis, or you can ask some question if you have some problem. Hello students. I think this one is answer the following question in details. What are the contribution? What is the contribution of Swatantri Veer Savarkar in national historiography? Okay, this one the first question. So you have to write the contribution of Swatantri Veer Savarkar. So in the given text, we have written that only he had written the book, that is the Indian War of Independence in 1957. So this is the contribution of Vinayak Damodar Savarkar, which is written in Nationalities Historiography. So this is the answer of this question. This is the, and you can say that he was a वीर स्वतंत्र वीर, सावरकर जो थे वो एक स्वतंत्र वीर थे। तो यू कैन राइट ही फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस बैटल ऑल्सो, ठीक है ना। तो यू कैन राइट अबाउट इट, बट इन द बुक, इन द गिवन बुक, इट इज रिटन दैट उनका जो ये कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ये उनकी एक कंट्रीब्यूशन थी, एक जो है, क्योंकि यहाँ नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस वाज रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर
is the greater contribution in the national historiography. Okay, the next one is, next question है, what are the benefits of preservation of natural and cultural heritage project? जो भी नेचुरल और हेरिटेज, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए. ओके, तो देखिए कल्चर और नेचुरल और कल्चरल हेरिटेजेस जो है, सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज रिलेटेड टू अवर पास्ट. Okay, it is directly related to our past, and when we preserve our past we can think about our future. Getting it? तो इसलिए उनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व अवर हेरिटेजेस प्रोजेक्ट्स. जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ वन किला इज देयर. शिवाजी महाराज का कोई भी आप किला ले लीजिए. For example, if we take care or preserve that killa, we will preserve our past. हम अपने पास्ट को प्रिजर्व करके रखेंगे. About our culture, now culture, if we say namaste to our elders or our friends, it shows our culture. ये हमारा कल्चर हमें शो करता है कि हम किस तरह से अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं. बट व्हेन वी से हाय हेलो, तो इट दिस नॉट इज आवर कल्चर. ये हमारा कल्चर नहीं है. तो अगर हम कहीं पे नमस्ते बोलना भूल रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट, वी आर गेटिंग सो फार अवे फ्रॉम आवर कल्चर. तो इन दिस वे वी आर, if we say namaste, that we preserving our culture. Getting it? Because it is directly attached to our past. So that's why we are uh, preserving this culture, our natural and cultural heritage. Now next one is प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म. जो भी अलग अलग प्रोफेशन फील्ड्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल फील्ड का मतलब है जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिनका जो भी प्रोफेशन है हम उनसे जुड़े हुए हैं, और ये टूरिज्म से कैसे रिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है, वो किस तरह से हमारे टूरिज्म से मिला हुआ है या फिर उसको बेनिफिशियल बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ होटल्स. ओके, होटल्स आर डायरेक्टली एसोसिएट और रिलेटेड टू, अटैच्ड टू टूरिज्म. हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो वी सी होटल्स आर देयर. हम डायरेक्टली देखते हैं कि, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, वी फॉर स्टेइंग वी सी होटल्स. कहीं पे स्टे करना है तो हम होटल्स देखते हैं. बट होटल्स इज अ प्लेस ओनली. देयर इज ओनली प्लेस इज देयर. वो एक प्लेस है, बट जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो अकेला होटल प्रोवाइड नहीं करता. गेटिंग इट? अब उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल टेक, इफ वी आर स्टेइंग इन अ होटल, देन इन द डिनर वी गेट समथिंग टू फूड टू ईट, बट इस होटल इज प्रिपेयरिंग देयर. होटल में जो भी वहां पे काम करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे हमारे लिए होते हैं. जैसे अब हमने खाना ऑर्डर किया, जो खाना बन रहा है, तो वो खाना वो मैनेजर नहीं बना रहे, ठीक है, उनके जो भी शेफ्स हैं वो बना रहे हैं. तो डायरेक्टली शेफ जो है वो भी उसका प्रोफेशन है. इट इज रिलेटेड, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द टूरिज्म. गेटिंग इट? अब शेफ जो भी खाना बना रहा है, जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको लगने वाला रॉ मटेरियल जो भी सप्लाई कर रहा है, ही इज और शी इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच्ड टू द टूरिज्म. गेटिंग इट? ओके, ट्रैवलिंग के लिए हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं, मे बी बस हो, मे बी वैन्स हो, जो कुछ है ट्रैवलिंग के सोर्सेस हैं, वो ट्रैवलिंग के सोर्सेज भी डायरेक्टली हमको वो ट्रैवलिंग जो लेके जा रहा है, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे लेके जा रहा है, अगेन इट इज डायरेक्टली अटैच टू द टूरिज्म. वो डायरेक्टली अटैच कर रहा है. उसके बाद में वहां पे आप देख सकते हो शॉप्स आर देयर, फूड सेलिंग इज देयर. फिर उसके बाद में बहुत सारी आपको सेलिंग के लिए चीजें दिखेंगी वहां पे, स्ट्रीट फूड्स दिखेगा. वो सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली अटैच है टूरिज्म से. इट मीन्स व्हाट, कि प्रोफेशनल फील्ड्स आर डायरेक्टली अटैच टू द टूरिज्म. गेटिंग इट? And the last question is why the library management is important. That library management is very important. Why? Because library is a huge place.
लाइब्रेरी ये एक बहुत बड़ी प्लेस है और इस बड़ी प्लेस को अगर हमें मैनेज करके रखना है, अलग से मैनेजमेंट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाई? बिकॉज़ इन लाइब्रेरी वी हैव वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर देयर। ठीक है? स्टोरीज़ बुक दिखेंगी आपको, आपको नॉवेल्स दिखेंगी, अलग-अलग टाइप की स्टोरीज़ बुक्स होती हैं, ठीक है? नाउ इफ ह्यूज लाइब्रेरी इज़ देयर और बिग लाइब्रेरी इज़ देयर, you can get that addition in different languages, आपको different different language में आपको उसके additions मिलेंगे। now if we want english novel, अगर हमें इंग्लिश नॉवल चाहिए कोई, तो व्हाट वेयर वी विल फाइंड इट? वी विल फाउंड इट इन अ इंग्लिश प्लेस और इंग्लिश लैंग्वेज प्लेस। गेटिंग इट? इफ वी फाइंड दैट बुक इन द हिंदी, देन हाउ वी विल फाइंड इट? गेटिंग इट? इसलिए वो मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी लाइब्रेरी में जितने भी टाइप्स की बुक्स होती हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इन सब के लिए अलग अलग जो है सेक्शंस बनाए जाते हैं और यही मैनेजमेंट है। और इससे क्या होता है, जो रीडर है वो उसको बेनिफिशियल होता है, उसका टाइम जो है वो कम स्पेंड होता है, वो ज्यादा टाइम पढ़ने पे दे सकता है, एफिशिएंट हो सकता है। प्लस जो लाइब्रेरियन है उसको भी पढ़ने के बाद में अगर कोई टेबल पे बुक रखे गया है तो वो बराबर उसी जगह पे बुक रखता है जिसका सेक्शन वो होता है। गेटिंग इट? सो अगर वो मैनेज्ड है, इट इज वेरी एफिशिएंट फॉर रीडर एंड फॉर लाइब्रेरियन ऑल्सो। गेटिंग इट? लाइब्रेरी अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो उसको मैनेज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स होती हैं वो बहुत अलग-अलग टाइप्स की होती हैं, अलग-अलग सेक्शंस की होती है, अलग-अलग लैंग्वेजेस की होती हैं। तो जब वो बुक्स निकलती हैं तब वो आराम से जो रीडर है वो उसी जगह से बुक निकालता है और लाइब्रेरियन उसी जगह पे वो बुक वापिस रखता है। दैट्स व्हाई द लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। गेटिंग इट? इज एनी क्वेरी? Students, is any query about the question paper? Yes, ma'am. Mind of the lecture.